Hello, my dear students of class 5th. Children, in the last class, before I say that, let me tell you that this is English class and we have the students of Hindi medium also with us. ठीक है, हमारे साथ हिंदी मीडियम के बच्चे भी हैं. तो मैं इंग्लिश में जब मैं एक्सप्लेन करूँगी तो मैं साथ साथ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट इन हिंदी एज वेल. ओके. So in the last class we saw a beautiful poem, Sing a Song of People, है ना. और ये जो गाना कैसे लोगों के बारे में गाने के लिए कहा जा रहा है, लोगों के बारे में गीत गाओ. कैसे लोगों के बारे में? पीपल ऑफ सिटी, शहर के लोगों के बारे में गाना गाओ. और दिस पोम टॉक्स अबाउट लाइक पीपल आर एवरीवेयर, हर तरफ लोग हैं, इतनी भीड़ भाड़ है, बट ऑल आर बिजी, है ना. इतने सारे लोग भरे हुए हैं शहर में, सब व्यस्त हैं, सब अपने आप में लगे हुए हैं. कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं दौड़ रहा है. Somebody is quiet, somebody is talking loud, somebody is talking over the phone, है ना. Somebody is going to the shop, somebody is going to the store, somebody is going to the elevator. Remember lift? Yes. And some people are going subway, under the subway, है ना. So like this, all are busy. कुछ लोग तो टोपी पहने हुए, कुछ लोग अम्ब्रेला लिए हुए हैं, right? But all are busy. People are passing from front, people are passing from the back, but nobody is talking to anyone and they don't know each other, है ना. इतने लोग आजू बाजू से गुजर रहे हैं, लेकिन ये किसी को वे नहीं जानते, सब अपने में बिजी. टैक्सीज घूम रही हैं इधर से पूरे शहर में, यहाँ से वहाँ जा रही हैं, सारी चीज, एवरीथिंग इज वेरी 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 बिजी. ओके. सो वी सॉ the question answers also. We also came across the new words, and today we are going to see the next exercise part. Okay, हम आगे exercise part में चलेंगे. Okay, over to the poem, Sing a Song of People. Okay, let's me recite it quickly. ठीक है, जल्दी से मैं recite कर लेती हूँ. Sing the song of people, walking fast or slow. People in the city, up and down they go. People on the sidewalk, people on the bus, people passing in back and front of us. People on the subway, underneath the ground, people riding taxis, round and round and round. People with their hats on, going in the doors. People with umbrellas when it rains and pours. And here, people in tall buildings and in stores below, riding elevators, up and down they go. People walking singly, people in a crowd, people saying nothing, people talking loud, people laughing, smiling, grumpy people too, people who just hurry and never look at you. Sing a song of people who like to come and go. Sing of city people you see but never know. Louis Lenski. Okay, this is the poet. Okay, come on. So let's move on to the next portion. Okay, we have done the new words also. Okay, let's read. Subway means underground passage for people to cross. ठीक है, नीचे से क्रॉस करने के लिए, रोड से इस पार जाने के लिए, सामने से जाने के लिए बहुत क्राउड होता है, तो क्या करते हैं, नीचे से चले जाते हैं, उस पार हो जाते हैं. ओके, ऑलराइट. अंडरनीथ मींस बिलो. एलिवेटर्स, लिफ्ट, जैसा मैंने कहा कि सीढ़ियों में चढ़ने की जरूरत नहीं है, आप उसके अंदर चले जाओगे तो प्रेस द बटन and it will take you up. Okay, and then grumpy means ill tempered, यानी कि उनका मिजाज बहुत खराब होता है, जल्दी से गुस्सा हो जाती है, चिड़चिड़े हो जाते हैं. Okay, I'm not going to take the question because I have done the question answers in the earlier part. Okay, without wasting time, let's move on to the next portion. Okay, here's the next portion, children. Language use. Okay, let's write the opposites of the following words. हमें इन सारे words के opposites लिखने हैं, विपरीत शब्द लिखने हैं. So what are the words? Slow, back, below, loud, up, tall, crowd, go. Okay, now let's write. Slow. What is the opposite of slow? The opposite of slow is
Okay, so the spelling is F-A-S-T. Fast. Back, front. Okay, so the spelling is F-R-O-N-T. Front. Okay, below, above. Okay, above. A-B-O-V-E. Above. Loud, quiet. Okay, quiet. Next, up, down. Okay, opposite is down. ऊपर, नीचे. Tall, short. Tall, लंबा, not short. Okay, S-H-O-R-T. Short. Crowd. What's the meaning of crowd? भीड़. Single. Okay, crowd, single. Or single you can write down. Okay, go, come. Okay, or you can write down alone also, children. Okay, crowd, alone. Okay, I'm going to write down alone, singly. You can write down anything. Okay, and then go, come. Okay, let's read out fast. Slow, fast. Back, front. Below, above. Loud, quiet. Up, down. Tall, short. Crowd, alone or singly. You can write down go, come. Okay, now this is stop time. Okay, children, the people who live in cities often wish they could live in quiet towns. See, जो लोग शहरों में रहते हैं वो सोचते हैं कि उनकी बहुत इच्छा होती है कि वो कहाँ जाए, एकदम शांत नगरों में चले जाएं. ठीक है, शहर, सिटी इज बिगर, टाउन इज स्मॉलर एंड विलेज इज द स्मॉलेस्ट. है ना? ओके, तो जो लोग शहरों में रहते हैं वो चाहते हैं कि शहर में ना रह करके शांत नगर में चले जाएं. सो पोर्ट ब्लेयर इज अ टाउन. ओके, डू यू लाइक द प्लेस यू लिव इन? क्या आप जिस जगह पे रहते हो क्या वो अच्छा लगता है आपको? यस, इन माय केस आई लव दिस प्लेस. ओके, द टाउन इज नॉट वेरी क्राउडेड. देयर इज क्राउड बट एट द सेम टाइम इट इज पीसफुल ऑल्सो. है ना? हमारा पोर्ट ब्लेयर जो थोड़ा सा भीड़ भाड़ वाला है, इलाका जैसा है, पर फिर भी शहरों की तुलना में यहाँ पे शांति है, अच्छा लगता है. ओके, टेल योर पार्टनर 2 things. अपने साथी को 2 चीजें बताइए. यू लाइक, 2 चीजें आपको अच्छी लगती हैं, आप 2 चीजें बताइए. आप जहाँ रहते हो उसके बारे में. एंड डोंट लाइक, और 2 चीजें जो आप नहीं अच्छा लगता, जो चीजें आपको पसंद नहीं आती, वो 2 चीजें बताओ. अबाउट द प्लेस यू लिव इन. जिस जगह पर आप रहते हो उसकी 2 बातें बताइए. जहाँ पर रहते हो जो 2 चीजें अच्छी लगती है आपको. मुझे सवेरे जब चिड़िया चहचहाती है मुझे वो बहुत अच्छी लगती है. ठीक है, और दूसरी बात, सेकेंड थिंग, फर्स्ट थिंग व्हेन द बर्ड्स चर्प इन द मॉर्निंग, यू नो, दैट आई लव. सेकेंड पार्ट, आई लव द ड्यू ड्रॉप्स ऑन द ग्रास. मुझे ओस की जो बूंदें हैं जो घास में होती है वो मुझे बहुत अच्छी लगती है. दीज आर द 2 things which I love. And 2 things which I don't like. 2 things. The first is evening time. It's very crowded around 5:30 to 6 o'clock. 5:30 से 6, 6:30 बजे तक में बहुत गाड़ियों की बहुत भीड़ होती है और शोर शराबा होता है. This I don't like. And one more thing which I don't like is these days we are getting little busy. आजकल हम लोग भी कुछ शहरों की तरह थोड़े व्यस्त हो जा रहे हैं. These are the 2 things which I
don't like. Now children, आप बता सकते हो, मैंने अपनी 2 चीजें बताई जो मुझे पसंद नहीं है और जो चीजें मुझे अच्छी लगती हैं, that I told. Now you have to tell your friend or your brother or your sister. You can ask them, आपको कौन 2 चीजें अच्छी लगती हैं और आपको कौन सी 2 चीजें अच्छी नहीं लगती है. पहले आप उनसे पूछिए and then आप बताइए कि आपको कैसी लगती है, क्या अच्छी नहीं लगती है. Okay? All right. Moving on to the next part is let's listen. सुनना है. Read and listen to these 2 poems. There are 2 poems. आपको read करना है, उसको सुनना है. With your partner, again with your partner, your friend, and find out what are the things that the village child and the city child like. और आप ये दोनों पोम को पढ़ लीजिए. दोनों पोम्स को पढ़ने के बाद में अब ये देखिए, पता लगाइए कि कौन कौन सी चीजें एक विलेज चाइल्ड, एक गांव में रहने वाला बच्चा चाहता है या उसे पसंद है, और एक शहर में रहने वाला बच्चा, सिटी में रहने वाले बच्चे को क्या क्या चीजें पसंद है, उसे क्या क्या चीजें अच्छी लगती हैं. कम ऑन, लेट्स फाइंड आउट विद दिस पोम. ठीक है, आइए हम ये दोनों पोम को पढ़ते हैं और पता लगाते हैं कि विलेज का चाइल्ड और सिटी का चाइल्ड, इन दोनों की क्या क्या पसंद है. ओके, नाउ फर्स्ट वी आर गोइंग टू रीड विलेज चाइल्ड. ठीक है, गांव का बच्चा जो है वो क्या बात कर रहा है अपने पोम में. ओके, द विलेज चाइल्ड, माई होम इज अ हाउस नियर अ वुड. मेरा घर एक छोटा सा मकान है. हाउस मीन्स मकान, होम मीन्स घर, सबको मिला के घर बनता है. ऑलराइट, ओके. नियर अ वुड, वुड मीन्स फॉरेस्ट. मेरा जो घर है वो कहाँ पर है? वो जंगल में है. आई वुड लिव इन अ स्ट्रीट इफ आई कुड. उफ, काश अगर मैं सकता. इफ आई कुड, अगर मैं सकता तो मैं कहाँ रहता? मैं स्ट्रीट में रहता. सिटीज में स्ट्रीट होती है, गलियां होती है ना शहरों में. हाँ, स्ट्रीट यानी कि गली. तो वो कहता ओह काश मैं गलियों में रह पाता. क्यों? गलियों में लोग बगल बगल पास पास होते हैं ना. ऑलराइट, आई डू विश समवन लिव्ड नियर देयर. देखा, और मैं विश करता कि काश मेरे आस पास भी कोई रहता. दैट मीन्स गांव में दूर दूर होते घर होते हैं. ओके, there's no one to play with at all. देखा आपने, कोई भी खेलने के लिए वहां आसपास नहीं है. मेरे घर के आसपास कोई नहीं है मेरे साथ खेलने के लिए. The trees are so high and so tall. पेड़ जो है वो इतने ऊंचे और लंबे हैं. ओके, and I should be lonely for us. और मुझे घंटों घंटों अकेला रहना पड़ता है. लोनली, अकेला. hours with घंटों घंटों मुझे अकेला रहना पड़ता है. Were it not for the birds and the flowers. मुझे घंटों घंटों रहना पड़ता अगर चिड़िया और फूल नहीं होते. ओके, if the birds and the flowers were not there, he should have been alone for us. अगर ये चिड़िया और फूल नहीं होते तो मैं घंटों घंटों अकेला रहता. एटलीस्ट कौन है उसके साथ में? कम से कम चिड़िया है और फूल है. ओके, तो विलेज चाइल्ड क्या चाहता है? कहाँ रहना चाहता है? लिव इन अ स्ट्रीट, स्ट्रीट पर रहना चाहता है. और क्या चाहता है वहां पर उसके साथ खेलने के लिए? आई विश समवन लिव्ड नियर, समवन लिव्ड नियर टू प्ले. ठीक है, मेरे साथ खेलने के लिए काश कोई मेरे साथ पास रहता. The trees are so high and so tall. पेड़ जो है बहुत ऊंचे और लंबे हैं. और अगर ये बर्ड्स और फ्लावर्स नहीं होते तो मैं अकेला घंटों घंटों रहता. ओके, नाउ लेट्स रीड आउट व्हाट द सिटी चाइल्ड सेज. अब ये शहर का जो बच्चा है वो क्या कहता है? आई, द सिटी चाइल्ड, आई लिव इन द सिटी इन अ स्ट्रीट. मैं सिटी में रहता हूँ और कहाँ में? स्ट्रीट में, गली में रहता हूँ. इट इज क्राउडेड विथ ट्रैफिक एंड फीट. ओह, ये तो ट्रैफिक गाड़ियों से और पैरों से यानी भीड़ भाड़ से भरा हुआ है. देयर आर बसेस एंड मोटर्स एंड ट्रैम. ओह, यहाँ पे बसेस हैं, मोटर्स हैं, मोटर गाड़ी हैं और ट्रैम्स भी हैं. ओके, आई विश, अभी क्या चाह रहा है? I wish there were meadows and land. मैं सोचता हूँ कि काश यहाँ पर हरियाली होती और लैम्स, भेड़ के बच्चे होते हैं ना, उनको
लैम्स कहते हैं, ठीक है। व्हाइट कलर, उसके बाल से हमें क्या मिलता है? वूल मिलता है। स्वेटर पहनते हैं इनके बाल, यस, वूल से स्वेटर्स बनते हैं। तो भेड़ के बच्चे को, शीप के यंग वन को कहते हैं लैम्ब। तो कहते हैं वो काश हमेशा तो जब तरफ हरियाली होती, पेड़ पौधे हरे हरे सब होते और वहां पर लैम्ब होता। द हाउसेस ऑल वेट इन अ रो, सारे घर जो है यहाँ पर एकदम कतार में, लाइन से, घर 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 ऐसे पंक्तियों में घर हैं। देयर इज स्मोक एवरीवेयर दैट आई गो, जहां भी मैं जाता हूँ वहां धुआं है। आपको पता है शहरों में धुआं होता है। यू नो व्हाई? बिकॉज ऑफ ट्रैफिक, बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रीज, बड़े बड़े कारखाने होते हैं और इतनी गाड़ियां चलती है कि सब तरफ धुआं भर जाता है। ओके ओके, नाउ आई डोंट लाइक द नॉइसेस आई हियर। ओह, द स्टूडेंट टेल्स, मुझे यहाँ पे जो शोर शराबे सुनने को मिलते हैं वो मुझे अच्छे नहीं लगते हैं, अच्छी नहीं लगती है मुझे ये शोर शराबे। ओके, आई विश देयर वर वुड्स वेरी नियर। क्या कहा उसने? देखो, आई विश देयर वर वुड्स, ओ काश यहाँ पर जंगल होते। और कहा क्या विश किया है? मीडोज एंड लैम्स, यहाँ पर हरियाली होती और लैम्स होते, और यहाँ तो हर तरफ धुआं धुआं है। काश मैं सोचता कि यहाँ पर जंगल होते। ओके, नाउ दिस क्वेश्चन इज राइटिंग क्वेश्चन चिल्ड्रन। डिड यू ऑब्जर्व दैट इन द पोम? क्या आपने पोम में ये नोट किया है, ये ख्याल किया है, द लास्ट वर्ड्स इन एवरी सेकेंड एंड फोर्थ लाइन राइम विथ ईच अदर। सेकेंड और फोर्थ लाइन जो है, दूसरा और चौथा लाइन जो है, वो आपस में राइम करता है, उनके आवाज मिलते जुलते हैं। कैसे? स्लो गो, बस अस, राउंड राउंड। ओके चिल्ड्रन, दीज आर राइमिंग वर्ड्स है ना, मिलते जुलते तुक वाले शब्द हैं। राउंड राउंड, बस अस, स्लो गो, एंड here hats on pores, here there is no thing, doors pores, these are also rhyming words. Okay, on today, below go, and then crowd loud. Okay, to you and go no. देखा आपने? So these are rhyming words. Okay, so in this poem there is, you can see there are rhyming words. Okay, and now can you write a 4-line poem? क्या आप 4 लाइन के पोम लिख सकते हैं इसी तरह? सेकेंड लाइन का लास्ट वर्ड और फोर्थ लाइन का लास्ट वर्ड जो है वो राइम करे। जैसे हमने कहा लाउड, क्राउड, ग्राउंड, फाउंड। ओके, तो प्लीज ट्राई टू राइट 4 लाइन्स चिल्ड्रन। आप अपने कोशिश कीजिए 4 लाइन लिखने के लिए, एंड ट्राई टू राइम, मेक दोज वर्ड्स राइम विथ ईच अदर। सेकेंड लाइन और या फर्स्ट और फोर्थ लाइन, और सेकेंड या फोर्थ लाइन और फर्स्ट और थर्ड लाइन राइम करते हुए आप कोशिश कीजिए बनाने के लिए। ओके, नाउ फाइंड आउट हाउ मेनी पीपल आर देयर इन आवर कंट्री। Is a task children. I am not going to help you out. Okay, मैं आपको ये बताने जा रही, this will be a task। हमारे देश में कितने लोग हैं? Okay, I am not going to give you any hint. Find out. Okay, you have to know the population of India. Okay, do we have enough land for all people on this earth? इतने सारे लोग अगर हमारे अर्थ में हैं तो क्या उतने सारे लोगों के लिए जमीन है रहने के लिए? इससे जब बहुत ज्यादा लोग हो जाएंगे तो रहने के लिए जगह कहाँ बचेगी, है ना? सपोज योर मॉम एंड डैड, ओके, या आपके पापा के भाई हैं, ओके, आपके पापा यहाँ रहते हैं, आपके पापा के भाई चाचा जी यहाँ रहते हैं, आपके पापा के 2 बच्चे हैं, आप और आपके 2 जने, अंकल के 2 बच्चे हैं, कितने हो गए? 4 हो गए। यहाँ पर इन 4 बच्चों को ये जमीन को 2 पोर्शन में बांटना होगा, इस जमीन को 2 पोर्शन में बांटना होगा, राइट? यस। अब इनके बच्चे होंगे तो उनको पोर्शन बांटना होगा, इनको बांटना होगा,
then finally जमीन बचेगी. It will be so difficult, children. है ना? जमीन रहने के लिए नहीं होगी. What about food? फूड को क्या करें हम? सेम प्रॉब्लम वी आर गोइंग टू फेस विद द फूड ऑल्सो. जब रहने के लिए जगह कम होगी तो फूड पैदा करने के लिए भी तो जमीन कम होगी, है ना? यस. सो व्हाट आर द थिंग? वी मस्ट बी केयरफुल अबाउट द पॉपुलेशन ऑल्सो, राइट चिल्ड्रन? हमें अपने देश की पॉपुलेशन को भी कैसे करना है? We have to bring it in under control. Yes. जब सारी चीजें कंट्रोल में होगी, then only you will have all the things whatever you want. ठीक है? जब पॉपुलेशन बढ़ते जाएंगे, आप उनकी सारी जरूरतों को पूरी नहीं कर पाओ. You will not be able to fulfill everybody's desire. Not only desire, जो नीड है, जो जरूरत की चीजें हैं, कपड़ा, घर, खाना, isn't it children? Food, shelter and clothing. These three things you need. इन चीजों के लिए भी पॉपुलेशन को अंडर कंट्रोल होना जरूरी है. There will be one time that earth will burst. अर्थ से लोग बाहर को गिरने लगेंगे. It will be very, very, very tough time for us. Okay? Yes. Now, there again the question, is there enough food and water for all people? जो अभी मैंने कहा, इतनी लोग हैं. You might have heard in the news also, लोग गरीबी से भूखे मर रहे हैं. When population will be there, there will be less job. काम कम होगा, लोग बेरोजगार होंगे. जो बेरोजगार होंगे तो उनको नौकरी ना होगी तो पैसे होंगे. No, you won't have money. मनी नहीं होगा तो can you buy food? See? Population. हर चीज के पीछे देखिए population है, isn't it? Okay. Next. Alright. Find out the following from 10 families living in your neighborhood. आपके पड़ोसी में 10 families को से आपको कुछ चीजें पता करनी है. You have to find out some information. क्या चीजें हैं? हर family 1, family 2, 3 like that you put number. Okay? जैसे यहाँ पर दिया है 5. Okay. ठीक है? मैं कॉलम बना दे रही हूँ. This 1. And here's family 1. Okay. तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन क्या है? चिल्ड्रन बिलो 5 years एज. फर्स्ट फैमिली में अब देखिए, अगर कोई बच्चा है, एक है या 2 है. सपोज एक है, राइट डाउन 1. अगर वहां पे 5 साल का छोटा कोई बच्चा है तो आप उसमें एक बच्चा है तो आप राइट डाउन 1. ओके. सेकंड फैमिली में है, नहीं है. थर्ड फैमिली में है या नहीं है. लाइक दिस यू हैव टू राइट डाउन. सपोज फोर्थ फैमिली में आपको मिला है 2 बच्चे, छोटे बच्चे मिले हैं. ओके. नेक्स्ट नहीं है. 8 फैमिली में 1 है. नेक्स्ट नहीं है. 10 फैमिली में 1 है. तो टोटल कितना होगा? 1, 2, 3, 4, 5. टोटल हाउ मेनी चिल्ड्रन? आपके पूरे नेबरहुड में 5 बच्चे हैं जो 5 years के नीचे हैं. ठीक है. नेक्स्ट, चिल्ड्रन फ्रॉम 5 to 14 years. अब 5 साल से ऊपर कितने तक? 14 years तक कितने बच्चे? दैट आल्सो यू हैव टू फाइंड आउट. आप उसमें सब में लिखिए और तब टोटल करके आप यहाँ पे लिखिए. ओके. नेक्स्ट, ग्रोन अप चिल्ड्रन फ्रॉम 15 to 20 years. फैमिली में 15 से 20 उम्र के कितने बच्चे को भैया या दीदी हैं? अगर हैं तो अब उसका भी लिखिए. लिखकर किसी से सारे फैमिलीज में जाइए, पूरे 10 फैमिलीज में जाकर पता कीजिए एंड देन राइट डाउन द टोटल. सिमिलरली एल्डर्स फ्रॉम 21 to 50 years. अब 21 years से 50 years के कितने लोग फैमिली में हैं वो भी सारी चीजें यू हैव टू फाइंड आउट. फैमिली 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये सारे फैमिलीज में जाकर के पता कीजिए. और एल्डर्स में वो लेडी हो सकती है या जेंट्स भी हो सकते हैं. ओके. सो राइट डाउन जितना टोटल होगा आप टोटल राइट डाउन लिख लीजिए. ओल्ड पीपल हु आर अबव 50. और जो लोग 50 years से ऊपर हैं, जिनका 50 साल से ज्यादा है, वो कितने हैं हर फैमिली में आप काउंट कीजिए. काउंट करने के बाद में हर फैमिली का काउंट कीजिए and write down the total as well. And then total number of people in the family. और फैमिली 1 में कितने जन रह रहे हैं? दादा दादी हैं,
मम्मा पापा हैं, बच्चे हैं, या उनके साथ कोई चाचा भी कोई रह रहा है, तो टोटल फैमिली कितने मेंबर है उसको यहाँ लिखना है। लाइक दिस सारी फैमिलीज में पता कीजिए कितने मेंबर्स हैं और फिर सारे नंबर्स को एक साथ टोटल कीजिए। ओके, दिस विल बी वेरी इंटरेस्टिंग, आप पता लगाइए। ओके, एंड नाउ लुक एट दिस, हाउ मेनी मेंबर्स आर एजुकेटेड इन ईच फैमिली। अब आपको क्या पता करना है कि कितने लोग पढ़े लिखे हैं एक हर फैमिली में। इस फैमिली में कितने लोगों ने पढ़ा है, स्कूल गए हैं, कितने लोग स्कूल पढ़े हैं, ये चीज आपको पता लगाना है, ये भी आपको अलग से पता लगाना है। ओके, नेक्स्ट, फ्रॉम अमंग्स द 10 फैमिलीज, इन 10 फैमिली में से हाउ मेनी आर एजुकेटेड। पूरे 10 फैमिली में आप टोटल में से आपको कितने लोग पढ़े लिखे निकालना है। पहले तो एक फैमिली में कितने लोग पढ़े लिखे हैं, किसी के दादा दादी नाना नानी दे आर नॉट एजुकेटेड, है ना, दे नेवर वेंट टू स्कूल, तो उस फैमिली में भी वो लोग तो नहीं आएंगे। ठीक है, तो जितने पढ़े लिखे हैं उनका नंबर लिखना है, और उसके बाद में सब मिलाकर सारे फैमिलीज में कितने लोग पढ़े लिखे हैं उनको भी गिनती करना है। एंड नाउ टॉक टू योर पार्टनर एंड देन राइट अ रिपोर्ट अबाउट योर नेबरहुड। ओके, नाउ यू हैव टू टॉक टू योर पार्टनर, अपने दोस्त से बातें करनी और उनको एक रिपोर्ट लिखना है। राइट डाउन रिपोर्ट सेइंग दैट लाइक इन लास्ट वीक आई मेट विद माय नेबर्स, 10 neighbors, 10 families, okay, and over there in my neighborhood I met with 10 families, and from the 10 families I got the information, मुझे ये information मिला कि इतने लोग 5 साल के नीचे हैं, there are 5 to 14 years are in this number, grown up children from 15 to 20 are in this number, there are 20 or 10 elders of the age between 21 to 50 years, and then there are old people who are above 50 years, about 80. Yeah, there are 20 old people who are above 50 years. You can write down that way, and then you can write down the total number of the people in the family is this much, and then you tell them that in each family, on the whole, in all these 10 families, how many people were educated. So, you can tell that amongst the 10 families, there are 35 people educated, okay? And you can write down that I'm so happy that so many people are educated, and these days people are having small families. Or if you find there are big families, you can tell that also. And you can also say, I can see that there are joint families, there are small families, mini families also. You can say whatever. जो आपने देखा है, you can write down in your own words. Children, here's a very interesting part, and that is interview. Let's interview. जानते हैं साक्षात्कार, किसी से पूछते हैं हम ना, आप कैसे हैं, आप अभी छोटे में कैसे थे, आपको क्या क्या चीज़ें अच्छी लगती थी। रिमेंबर चिल्ड्रन, यू माइट हैव सीन इन द टेलीविजन प्रोग्राम्स आल्सो, है ना, आपने टेलीविजन में आपने देखा होगा लोगों को दूसरों का इंटरव्यू लेते हुए। ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट इट इज योर इंटरव्यू योर टीचर। आपको किसका इंटरव्यू लेना है? अपने टीचर का इंटरव्यू लेना है, एंड गेट हर रिस्पॉन्सेस, और उसके जो रिस्पॉन्स, जो उनके जवाब है, उनको ले लीजिए फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, आपको ये सारे क्वेश्चन उनके जो टीचर आप जवाब देंगे, अब उन जवाब को लिखना है। ओके, तो व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन? आप अपने टीचर को इंटरव्यू कर रहे हैं, तो फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन? व्हाई डिड यू बिकम अ टीचर? आप अपने टीचर से पूछिए कि मैम आप टीचर क्यों बनी। ओके, वेल किसी का जवाब हो सकता है कि वह मुझे बहुत अच्छा लगता था, जब मैं अपने टीचर को देखती थी तो मुझे बहुत अच्छा लगता कि मैं बड़ी होकर मैं टीचर बनूं, या फिर अपने मम्मा को देखते थे तो मुझे लगता था कि मैं अपने मम्मा के जैसे अच्छी टीचर बनूं, या फिर मुझे बच्चों से बहुत प्यार है, मैं चाहती हूँ कि बच्चों को मैं पढ़ाऊँ। वेल इन माई केस माई मॉम वॉज ऑल्सो टीचर, सो आई हैड दैट समवेयर डीप डाउन। मम्मी को देख करके लगता था कि आई टू वुड बिकम अ टीचर, एंड आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ चिल्ड्रन। तो मुझे बच्चों के साथ अच्छा लगता है, बच्चों को सिखाना अच्छा लगता है। सो दिस इज वन ऑफ द रीजन आई बिकेम अ टीचर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डू यू कम टू स्कूल एवरी डे? वेल, I come to school by scooty. Okay,
आप अपने टीचर से पूछ सकते हैं वो कैसे आते हैं, इफ शी इज कमिंग बाय बस, इफ शी इज कमिंग बाय कार और एनीथिंग. ओके, नेक्स्ट, डू यू हैव एनी पेट्स? अब अपने टीचर को पूछिए कि क्या आपके घर में कोई पेट है. वेल, सम पीपल कीप कैट, some people keep dogs, some people even keep what, birds, yes, and some people have rabbits also at home. Okay, you can ask your teacher whether she has a pet or not. Okay, and then what kinds of books do you like to read? आप अपने टीचर से पूछिए, मैम आपको कौन सी किताबें पढ़नी अच्छी लगती हैं? Well, I love to see nice pictorial books. Okay, अच्छी पिक्चर वाली बुक्स मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, स्पेशली अबाउट डांस. ओके, कल्चरल चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं. एंड आई लव टू रीड द बुक ऑफ गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड. ओके, दैट बुक आई लव. एंड चिल्ड्रन, आई लव द पंचतंत्र स्टोरीज. मुझे पंचतंत्र स्टोरीज और अकबर बीरबल स्टोरीज, आई लव दैम. ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट आर योर हॉबीज? आपकी हॉबीज क्या है? व्हाट I love to sing, I love dance, and I love sketching also. So these are the things. आपके टीचर ने जो जो आंसर बताया है, write down those. That is the answer in your interview. Okay? So similarly, आप किसी और का भी इंटरव्यू कर सकते हैं. If not teacher, you can ask if you have any doctor friend in your family. You can ask uncle. Okay, आपका डॉक्टर अंकल, क्या आप बता सकते हैं क्यों आप डॉक्टर बने हो? Why did you become a doctor? And then again, how do you come to your hospital, or how you go to hospital, or do you have any pets? Or you can ask him, doctor, what kind of books do you love to read? आपको कौन सी किताबें पढ़नी अच्छी लगती हैं? And doctor, what are your hobbies? आपकी और hobbies कौन कौन से हैं? Like that you can interview anyone, children. Okay? Okay. So now we are moving to the other part. Okay? Okay, now children, now let's see. Now the interview what we have taken, अभी हमने जो interview लिया है, now it is related to that. Okay? Now write a paragraph about your teacher. जो मैंने कहा था, जब आपकी टीचर जब आंसर दे रही थी तो you have to write down those answers. ठीक है? Now ये जो आंसर्स है वो आपको हेल्प करेगा आपको ये पूरे टीचर के बारे में लिखने के लिए. ओके, दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू राइट अबाउट योर टीचर. ओके, नाउ अबाउट टीचर. नाउ राइट अ पैराग्राफ अबाउट योर टीचर. आपके टीचर के बारे में पैराग्राफ लिखना है विद द इंफॉर्मेशन यू हैव गैदर्ड. जो इंफॉर्मेशन अभी आपने टीचर से पूछा और उसका सारा आंसर आपको मिला है, तो अबाउट विद द हेल्प ऑफ दोज इंफॉर्मेशन यू हैव टू राइट वन पैराग्राफ अबाउट योर टीचर. तो क्या लिखेंगे? माय टीचर सेज, मेरी टीचर कहती है, she became a teacher because her mother was a teacher and she is very fond of children. हो गया? Okay, then next you can write down. और क्या कौन से क्वेश्चन थे? Then how do you come to? Well, my teacher comes to school every day by scooty. Okay, and then my teacher has a pet. And the name of the pet is Rambo or Tommy, anything you can write down. And my teacher loves to read Panchatantra books, Guinness Book of World, okay, Guinness Book of World Record, and she loves to read Akbar Birbal stories. Okay, and then what are your hobbies? And my teacher's hobbies are to what? To sing, to dance, to watch lovely movies or whatever. आपने जब टीचर से जो इंटरव्यू किया है, same thing you have to write down in this paragraph. देखिए, and without any effort, बिना किसी परेशानी के आप एक सुंदर पैराग्राफ लिख पाओगे. Without any effort, you will be able to write down one paragraph. जो क्वेश्चंस थे उसी का आंसर आपको लिखना है. दैट्स ऑल. ओके, सिमिलरली जैसा मैंने कहा, आप डॉक्टर को भी इंटरव्यू कर सकते हो. यू कैन इंटरव्यू अ डॉक्टर और यू कैन इंटरव्यू एनीवन यू फील लाइक. ओके, सो चिल्ड्रन, आई वांट यू ऑल टू डू दिस. ओके, डू प्रैक्टिस. दे आर वेरी सिंपल. दे आर जस्ट वन लाइन आंसर ओनली. All that you have to just connect them. That's all. One sentence after another you have to write down. Okay. So children, I'm sure you might have understood the whole lesson.
okay, and I want you all to go through all the exercise जो हमने आज एक्सरसाइज किया है, ठीक है, ये सारे एक्सरसाइज जो है इंटरव्यू वाले क्वेश्चन, ओके, and about this family, children you have to do this, please do this and fill up this, okay. आपके नेबरहुड में 10 families चूज कर लीजिए, family 1, family 2, like this, number them and write down and get all the information. ये सारे information आपको ले लेने, nothing, सिर्फ आपको नंबर लिखना है, right children? और उसके बाद में आपको क्या पता करना है, कितने लोग एक फैमिली में, कितने लोग एजुकेटेड हैं, कितने लोग स्कूल गए हैं या पढ़े लिखे हैं, पढ़ना लिखना जानते हैं, एंड टोटल सारी 10 families को मिला करके हाउ मेनी पीपल आर एजुकेटेड, ओके. सो दिस थिंग यू हैव टू राइट, इट्स वेरी इजी जॉब, आप कर सकते हो, ओके. एंड देन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द विलेज चाइल्ड एंड सिटी चाइल्ड, दोनों बच्चे क्या सोचते हैं, उनके विशेस क्या हैं, ओके. वी वेंट थ्रू दैट एंड we also saw the opposite words, okay. And before, in the first part also, we saw the word meanings also, the question answers also, okay. So children, please go through all these portions, okay, and do recite the poem again and again, okay. So that's all for today, children. See you in the next class. Bye bye.